क्या वास्तव में जोमैटो डिलीवरी बॉय दोषी था? जोमैटो डिलीवरी बॉय को आरोपी मानने से पहले यह भी समझना होगा। खबर को बताने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हम इस खबर में ना तो किसी का पक्ष ले रहे हैं और ना ही किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हां, हम सच कह रहे हैं। इस पूरे मामले की हकीकत को जानने से पहले आपको आरोप लगाने वाली महिला का वो बयान जरूर सुनना चाहिए। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. Guys, let me tell you the story. The entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back. And then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being the single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. After that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the X-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital, so I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally. And I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that, I am able to talk this much. And also, thank you so much for Bengaluru, Karnataka police. Like, the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern and they listened to me. And I was so scared after the incident what happened. So they were like, till the time we are alive, madam, you need not worry about whatever is going on. So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you guys know me, like I being an influencer and face for you guys. If this gets ruined for me, I don't know what next stands there for me, but I would love if you guys really support and share this video as much as possible so that this does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching. अब हम आपको उस लड़के का पूरा बयान भी बता देते हैं, जिसके बाद आपको खुद ब खुद हकीकत का पता चल जाएगा। डिलीवरी बॉय का बयान। पुलिस की पूछताछ में इस डिलीवरी बॉय ने महिला को मुक्का मारने से साफ इनकार किया है। डिलीवरी बॉय ने अपने बयान में कहा, मैं उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा और उन्हें खाना दिया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन चुना था और मैं उनसे पेमेंट की उम्मीद कर रहा था। मैंने ट्रैफिक और खराब सड़कों के कारण डिलीवरी में हुई देरी के लिए उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उनका व्यवहार काफी खराब था। उन्होंने मुझसे पूछा, खाना लाने में देर क्यों हुई? महिला के इस तरह का बर्ताव के बाद कामराज ने कहा,
मैंने माफी मांगते हुए बताया कि सड़क पर कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड ब्लॉक थे और ट्रैफिक जाम था, लेकिन वो जोर देकर कहती रही कि ऑर्डर करने के 45 से 50 मिनट के अंदर खाना डिलीवर करना होता है, इसलिए आपको खाना अब फ्री में देना होगा। कामराज का कहना है कि मैं इस काम को 2 साल से ज्यादा समय से कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ इस तरह का काम पहली बार हुआ। कामराज ने आगे बताया, कस्टमर हितेशा ने खाना लिया और ऑर्डर के पैसे देने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे पेमेंट के लिए कहा तो उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया और गुलाम कहा। फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम कर क्या सकते हो। इसके बाद मैंने बिना खाना लिए ही वहां से जाने का फैसला किया और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। तब उन्होंने हिंदी में मुझे अपशब्द कहे और मुझे चप्पल से मारा। उनके प्रहार से बचने के लिए मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया। वो मेरा हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी तो गलती से उनका हाथ उनकी नाक पर लग गया और अंगूठी से चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। जो कोई भी उनका चेहरा देखेगा वो समझ जाएगा कि ये एक पंच से नहीं हुआ है। मैं कोई रिंग भी नहीं पहनता और इंस्टाग्राम वीडियो में हितेशा रिंग पहने हुए दिख रही हैं। हमारे सवाल, इस पूरे मामले पर हमारे कुछ सवाल हैं। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते वक्त महिला ने पेमेंट भी ऑनलाइन क्यों नहीं किया? आजकल कैश से आसान तो ऑनलाइन पेमेंट है, तो फिर कैश ऑन डिलीवरी करने के पीछे क्या वजह थी? तो वहीं अब यह मामला ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। लोग इस मुद्दे पर अपनी बात को रख रहे हैं। नवनीत लाइव ट्विटर यूजर ने लिखा, एक आईफोन यूज करने वाला इंसान अगर देर से ऑर्डर के चलते पैसे वापस चाहता है, वो भी जोमेटो डिलीवरी बॉय से, गलत है। तो वहीं शिवानी नाम के यूजर ने लिखा, विक्टिम कार्ड भारत में बहुत कारगर होता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। रुपेंसु प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, महिला ने अपनी खून वाली नाक दिखाई, लेकिन एक इंसान जो 20 साल तक फेक रेप केस में जेल में रहा, उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक आदमी था। परवेज चौधरी नाम के यूजर ने इस तरह के काम करने वालों के मुंह पर थप्पड़ मारने वाला ट्वीट किया और एटीएम कार्ड वाली तस्वीर और विक्टिम कार्ड लिखकर कहा कि अगर आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो इसका उपयोग करें। अनुज तोमर नाम के यूजर ने 2 तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि याद कीजिए जसलीन कौर का मामला, जब सरबजीत की लाइफ खत्म हो गई और वो कनाडा में सेटल थी। इस तस्वीर में अनुज ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके किसी की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम आपके सामने इस खबर के पीछे के कुछ फैक्ट्स रखते हैं। ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो आप और हम सब देखते भी हैं और समझते भी हैं। दरअसल ये सर्विस सेक्टर का मामला है। सर्विस सेक्टर में काम करने वाला हर इंसान बखूबी समझता है कि उसे अपने कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उन्हें डील करना है। छोटी सैलरी की नौकरी करने वाले इस तरह के लोगों को बखूबी पता होता है कि अगर वो कस्टमर से बदतमीजी करेगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, और आज के वक्त में नौकरी जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस डिलीवरी बॉय को भी ये बखूबी पता होगा। खैर, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अब आप खुद समझिए, क्या कोई डिलीवरी बॉय जिसको डिलीवरी पर पैसे मिलते हैं, अगर कस्टमर को ऑर्डर फ्री में देना पड़ जाए तो वो पैसे उसकी तनख्वाह से कटते हैं? क्या इस तरह की नौकरी करने वाला इंसान इस तरह का काम करेगा? अगर महिला सही थी तो वो लेट होने पर भी खाना लेकर उसे पैसे दे सकती थी। सवाल तो कई हैं। हमने आपको दोनों तरफ की बातें बताई और अपने कुछ जनरल सवाल आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है, क्या डिलीवरी बॉय की कोई गलती है? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।